Like one is heredity, genetic, autoimmune. इनका मीनिंग पता है सबको? हेरिडिटी, जेनेटिक्स और ऑटोइम्यून. सो जेनेटिक्स तो डिटेल बहुत बड़ा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है. एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोइम्यून पढ़ा था जब हमने कौन सा एनीमिया पढ़ा था, पर्निशियस एनीमिया, वहां पे डिस्कस किया था. ऑटोइम्यून इज ए टाइप ऑफ कंडीशन or disease problem. So this is our immune system. The role of this immune system is continuously, like आप कभी एयरपोर्ट या फिर मेट्रो या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, एंड वो जो सिक्योरिटी पर्सन होता है वो कंटिन्यूसली हर एक पर्सन को चेक करता है फ्रीक्वेंटली, एंड इफ ही और सी फाइंड समथिंग जो अलाउड नहीं है, अगर उसको लगता है ऐसा कुछ है तो फिर उसको क्या करता है, वो फिल्टर करके हटा के उसको फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको निकाल के फिर भेजते हैं. सेम थिंग इन आवर बॉडी, दिस इम्यून सिस्टम इज लाइक ए सिक्योरिटी चेक, एंड इट इज टेकिंग एवरी सेल और एवरीथिंग इन आवर बॉडी कंटिन्यूसली. जो भी बॉडी के अंदर आएगा उस हर एक सेल को क्या करेगा, चेक करेगा. एंड इफ इट इज द सेल व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दैट पर्सन बॉडी, लाइक मेरा इम्यून सिस्टम मेरी बॉडी के सेल को चेक कर रहा है, माय इम्यून सिस्टम इज कंटिन्यूसली चेकिंग माय बॉडी सेल्स, एंड बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी लाइक अ बैक्टीरिया इज एंटरिंग इनसाइड माय बॉडी, दैट सेल इज नॉट रिलेटेड टू माय बॉडी, दैट इज अ foreign body, that is a foreign cell. So this immune system recognizes that as a foreign cell. This is my own cell and this is a foreign cell. When there is a foreign body present in my system, in my body, then this immune system considered this foreign body or the foreign cell as an antigen, and it will immediately start making antibody against this antigen. This immune system will form antibody against this antigen, and this antibody antigen both will fight with each other, and this antibody kill this antigen, and that foreign cell or foreign body will be filtered out, और आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, and you will be healthy. आप हेल्दी रहेंगे आपके इम्यून सिस्टम की वजह से. So this is a normal process, but in some cases there is no foreign body, no foreign body, बाहर से कोई भी foreign body नहीं आया. In this situation, if your immune system automatically stimulated without any foreign body, and it will start forming antibody, and these antibody killing your healthy cell. जो आपकी बॉडी की अपनी सेल है उन्हीं को क्या कर रही है, एंटीबॉडी किल कर रही है. This type of response is known as autoimmune response. So what is autoimmune? In simple word, when our own immune system killing our own cells, that type of response is known as autoimmune. And in this, there is no foreign body, no cause is there. It's a spontaneous automatic activity. यहाँ पे immune system sometime misdiagnose कर लेता है, sometime misunderstand कर देता है, misinterpret करता है सेल को, और उसको क्या लगता है कि ये बॉडी की जो सेल है ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है, उसको अपनी सेल को क्या कर देता है, वो किल कर देता है. This type of condition is known as autoimmune. Clear? Next, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है heredity, और one term is genetic. Genetic means there is a problem in gene. There is a problem in gene. जीन और द क्रोमोसोम, जीन जो है किसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा, क्रोमोसोम्स के अंदर. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द जीन और इन द क्रोमोसोम. वी हैव टोटल 23 pairs of chromosome. Yes, I will teach you in detail about these all pairs of chromosomes and gene or everything in detail in genetics. So these 23 pairs of genes or the chromosomes should be in healthy state, should be in the normal genetic material, जो है वो नॉर्मल होना चाहिए. In some cases जो ये आपका जीन या जो क्रोमोसोम्स है इनमें क्या हो जाता है, लाइक जैसे हम पढ़ते हैं ट्राइसोमी 21, पढ़ा है ट्राइसोमी 21. So what is the meaning of trisomy 21? The gene number 21, normally it is a pair, means it is available in two. Like if it is a gene which is related to sex chromosomes, then it will be XX or XY. This is the 23 number gene. ये कौन सा है, 23 है. Otherwise all are AA or AA, autosome बोलते हैं जिनको हम. These are the allosome and these are the autosome. So in case of 21, trisomy 21, this 21 number gene which is AA, normally AA, but in this disease this will be AAA, excess of one gene, and this condition is known as trisomy 21. And if you have this type of condition, it will cause a specific genetic disorder in the person, which is known as trisomy 21 disorder. and उसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, वो मैं अभी नहीं पढ़ा हूं जेनेटिक्स, बट इसका मीनिंग क्या होता है, जेनेटिकल डिजीज का वो समझा रहा हूं. जीन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम्स होना, वो डिजीज किसके अंदर आती है, genetic diseases. These are known as genetic disease. In some individuals this may be decreases, like in some individual it is only one gene is missing, so that is also a genetic problem. It will also cause a genetic disease. So ये problems किसके अंदर आएगी, genetic diseases के अंदर. If this genetic disease from like this trisomy 21 or this disease or like other allosome problem, if this disease is the first generation and it is transferring from first generation to second generation, if this genetic disease transfer from one generation to the next generation, this transfer is known as heredity. This condition is known as heredity. Clear? This genetic problem, there is a problem in chromosomes numbers. Normally we have 46, but if a person is in 46 की कंपैरिजन में 47 chromosomes है, then person will have a genetic disorder. And it is कि कौन सा disease होगा वो उसके नंबर पे डिपेंड करेगा, and we will discuss that in genetics in detail. And if person is having 45 chromosome, again there will be a genetic problem. And if this disease is transferring from mother or father to their next generation offspring, their children, that transfer is known as heredity problem. So यहाँ heredity anemia का मीनिंग भी क्या होगा, heredity anemia का मीनिंग क्या होगा, what is the meaning of heredity anemia? So first cause of anemia is, the cause of anemia is not heredity, cause of anemia is a genetic problem. Cause of anemia is genetic problem. There is a genetic problem in the parents, either in mother or either in father, that is causing anemia in the mother or father, and that anemia is transferring from mother or father to the next generation. That's why it is known as heredity anemia. Clear?
सो यहाँ पे अगर हम आरबीसी की बात, एनीमिया का मतलब हम किसकी बात करेंगे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एंड इन रेड ब्लड सेल द मेजर कंपोनेंट इज hemoglobin, and in hemoglobin we already discussed there is a two specific chain, one is alpha chain and one is beta chain. याद है, alpha chain and one is two alpha chain and two beta chain, और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था, one alpha chain is 121 and beta chain में 120 141 and 146. Very good. So in one alpha chain there will be 141 amino acids, and in one beta chain there will be 146 amino acids. Now and in any person, if this chain which is having 141 amino acid, if this number is decrease or increase, like it will be 140 or 146 in alpha chain or 150, so this is the change of number in the amino acid which is present in the alpha chain. This is an indication for genetic problem. ये किसको इंडिकेट कर रहा है, आरबीसी का जेनेटिक्स ही खराब है, जेनेटिकल जो प्रॉब्लम प्रेजेंट है उससे जो आरबीसी बनेगा वो आरबीसी क्या बनेगा, abnormal आरबीसी बनेगा. दैट इज नॉट अ नॉर्मल आरबीसी. नॉर्मल आरबीसी रिक्वायर्ड 141 alpha amino acid and 146 beta chain amino acid. If the number of these amino acids are higher or less, that will cause a genetic problem, or RBC will be in abnormal shape or size or function. That type of anemia is known as genetic problem, and this is come under the hereditary anemia. Clear? So I think ये मैं already पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको. Hemoglobin molecule is made up of 4 polypeptide chain पढ़ा था, 2 alpha and 2 beta. That is the 4 polypeptide chains. ये already आप लिख भी चुके हो पहले. 2 alpha chain of इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, 2 alpha chain क्या है ये, contain not 2 contain 2 alpha chain each of contain 141 amino acid, जो हम ऑलरेडी पहले जब हमने हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन आपको पढ़ाया था, याद है तब पढ़ाया था. एंड 2 बीटा चेन और ईच के अंदर कितने होंगे आपके, ईच ऑफ 146 अमाइनो एसिड. Alpha and beta chains have different sequence of amino acid. Obviously in alpha chain we have 141 amino acids and they are having a separate sequence, and in beta chain we have the 146 amino acids and they will have their own separate sequence. If the sequence is altered, if the number of amino acid is decreased or increased, that all will cause the abnormal shape or size of the RBC or the abnormal function of RBC, which is known as anemia. So this is clear. Autoimmune, genetic and hereditary. Clear? एनीमिया है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज विच इज हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज. जानते हो इसके बारे में, द पर्सन लव टू ब्लड. इसके बारे में अगर आज टाइम बचा तो आज डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में, और मोस्टली वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस ब्लड बाय टुमारो. हीमोफीलिया बचा है, ल्यूकीमिया बचा है, और उसके साथ में थैलेसीमिया तो आज पढ़ा दूंगा, वो एनीमिया के अंदर है. 2 डिजीज जो बची है, ल्यूकीमिया एंड दिस हीमोफीलिया. उसके साथ में एक हम पढ़ेंगे लिम्फोमा. लिम्फोमा लिम्फोमा कहीं और पढ़ाते, लिम्फोमा इसमें पढ़ाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाया, उसमें पढ़ाते हैं. बिकॉज़ लिम्फोमा इज अ डिजीज ऑफ लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फोमा इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लड. अगर नहीं, मैं सर से बात करूंगा, नहीं पढ़ाते तो पढ़ा देंगे, अदरवाइज दैट विल बी डिस्कस इन लिम्फेटिक सिस्टम. पढ़ाते हैं? ओके सर, आप पढ़ा तो फिर भी सर क्या हो रहा है, डोंट वरी, वी विल डिस्कस. मोस्टली आई विल कंप्लीट दीस 2 डिजीजेस, हीमोफीलिया एंड ल्यूकेमिया, बिफोर 2.5 आवर. कल पहली क्लास होगी तो जल्दी हो जाएगा, एंड जो टाइम बचेगा उसमें मैं आपको लिम्फोमा भी पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं. और टेस्ट के अंदर एनीमिया पूरा, उसके साथ में ल्यूकेमिया, और जो हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वो सारे आपको क्या करना है, पढ़ना है. अगर होता है तो, नहीं होता है तो फिर एंजॉय करना है. अभी सर आए नहीं, आज भी आए नहीं तो मैं डिस्कस किया नहीं अभी. क्लियर है? मूव करें आगे. नेक्स्ट, दीज आर द अमीनो एसिड्स. दीज आर द अमीनो एसिड व्हिच इज कम अंडर 2 कैटेगरीज. वन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकंड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. सम टाइम एग्जाम में पूछ लेते हैं which of the following is an essential or which is the following of non essential. So these are the amino acid which is come under essential and non essential amino acid. Histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. These are the essential amino acid, and the second one is a non essential amino acid. Alanine, arginine, asparagine, aspartate, cysteine, glutamate, glutamine, glycine, proline, serine and tyrosine. So it is important to understand the genetic diseases or the hereditary problems. यहाँ पे इस डिजीज के बारे में कुछ भी नहीं है और कुछ भी. एनीमिया होगा तो एनीमिया के सिम्टम्स आएंगे. बस अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, उसमें कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे नहीं हो सकता है. सो उसको समझने के लिए वैसे तो डिटेल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जीन पढ़ना पड़ेगा, जीन के एलील पढ़ने पड़ेंगे, क्रोमोसोम्स पढ़ना पड़ेगा. देन उसके बाद व्हाट इज ऑटोसोमल, व्हाट इज रिसेसिव, व्हाट इज डोमिनेंट एंड एलोसोमल, डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोसोमल, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, 4 डिजीज होती है. लास्ट ईयर नोट्स के अंदर इसका क्वेश्चन आया था जेनेटिक्स का, एक फैमिली ट्री दिया था, फैमिली ट्री जानते हो, एंड क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इन दिस ट्री. तो कैसे निकालता है ट्री को देख के,
diseases, how to identify the autosomal or dominant diseases. After ending of this blood, we will discuss about nervous system and then we will start the genetics. Very important genetics and very easy subject. It's very easy. देख लिया? So आज 5th हो गया है. Day after tomorrow you have a ESIC. आज 4 है? हाँ आज 4. ओके, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मुझे लग रहा है 5th आ गया. हाँ 4 है आज, कल 5th है, 2 दिन बाद. So after 2 days you have ESIC exam जो आपका scheduled है. I think अलग-अलग शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट 2 to 4 है I think, है. और ऑफलाइन पेपर होगा, तो आप अच्छे से तैयार होकर जाएं पढ़ाई के मामले में. ऐसा नहीं बिल्कुल तैयार है, स्टडी की बोल रहा हूँ, पढ़ के जाएं, उसकी तैयारी की बात कर रहा हूँ. और बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाएं. मोर इंपोर्टेंट क्या है? योर कॉन्फिडेंस. एग्जाम में बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ये लिख लिया? जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो 2 पॉइंट होते हैं आपके पास, लिख लिया? वो करें. आप जब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो बस 2 ही थिंग होती है. एक होता है मुझे कितना आता है. पहला क्या होता है? मुझे कितना आता है. एंड सेकंड, मुझे क्या नहीं आता है. अभी एग्जाम है 2 दिन बाद. तो आफ्टर 2 days you have exam and remember that it is not possible to crack exam in 2 days. 2 दिन में एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता है. आप भी जानते हो, सब जानते हैं, हर एक जानता है कि 2 दिन आप चाहो कि मैं 2 दिन रात दिन 48 घंटे पढ़ के 48 आवर्स स्टडी करूंगा और फिर क्या करूंगा, एग्जाम क्रैक कर दूंगा. तो फिर हम बेच ही 2 दिन के रखते थे. एग्जाम से पहले 2 दिन बेच, 50,000 फीस और सिलेक्शन. हमारे भी बढ़िया और आपके भी बढ़िया. कुछ काम नहीं, 2 दिन भूखे रहोगे तो काम चल जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा. सो इन 2 days सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे क्या है आपके पास? तो आपके पास जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है 2 पॉइंट. जो मैं बोला वो नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है 2 थिंग का. वो है, वन इज बी पॉजिटिव एंड सेकंड इज बी कॉन्फिडेंट. लाइफ में हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जितना आता है, आज कल परसों जितना पढ़ लोगे, जो आता है उसमें हमेशा पॉजिटिव रहे. नेगेटिव सोचने से वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा. आप ये सोचोगे कि अभी तो 50% ही हुआ है, 50% मुझे आता ही नहीं, मेरा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो पहले ही आप मेरिट से क्या होगे, बाहर निकल गए. लेकिन आप पॉजिटिव रहे कि मेरे को 50% आता है, एंड क्या पता पेपर से उसी 50% से आएगा. भाई जो मेडिकल है अपना, मेडिकल सर्जिकल जो फील्ड अपना, मेडिकल फील्ड, ये बहुत बड़ा है. और क्वेश्चन सिर्फ कितने आने, 100-120 क्वेश्चन आने, इतने तो क्वेश्चन आने. और क्या पता वो क्वेश्चन आपके उसी 50% से आए जो आपको आता है. लेकिन आपने इतना नेगेटिव सोचा कि वो 50% 25 रह गया. आपने क्या सोचा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं. वो 50 से कितना हो गया, 25 आता है, 75 अब नहीं आता है एग्जाम तक. तो इससे अच्छा क्या करें, पॉजिटिव रहे कि जो होगा देख लेंगे, जो मुझे आता है उसमें मैं बेस्ट करूंगा या करूंगी. और मैं भी हो सकता है आप में से 10, 15, 20, 50 जो नए हैं, पुराने तो हो ही जाएंगे सारे, नए वाले भी चिपक जाएंगे उनके साथ में. होता है बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम नॉर्थ सेट बेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ ही दिन बाद एग्जाम आ जाता है, तो उस टाइम हम कुछ दिन थोड़ी बड़ी क्लासें करके रिवीजन कराते हैं. और कुछ होते हैं जो उसमें पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाते हैं. वो 10-15 दिन, 1 महीना पढ़ के सिलेक्ट होकर चले जाते हैं, उनको आगे जरूरत नहीं पड़ती, सिलेक्शन हो गया. तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस एग्जाम में क्या होंगे, फ्रेशर्स की बात करूं, जो अभी आए हैं. पुराने वाले तो सब वही जाएंगे, डोंट वरी, उनको तो सब पढ़ा दिया. सो पहला क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, पहला क्या पॉइंट आपके लिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव. लाइफ में हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे. सेकंड थिंग, कॉन्फिडेंट. एंड ये कॉन्फिडेंस किसमें होना चाहिए, सेल्फ, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं या कर सकती हूं. पहले ही सोच रहे हैं ये सही 5 लाख फॉर्म, मेरे बस का काम नहीं है. पहले आप आउट हो गए, मेरिट से पहले आउट, आप कभी नहीं कर पाओगे. फिर आपको क्या सोचना है कि बस एक पोस्ट ही तो चाहिए, 2000 पोस्ट में सिर्फ एक लानी है, दाएं हाथ रखिए, ऐसे करते आ जाएगी, तब तो आएगी. पहले क्या सोचते हैं, इतनी पोस्ट, ये पोस्ट मेरी नंबर आएगा. सो अपने अंदर क्या रखें, कॉन्फिडेंट रहे, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज सेल्फ कॉन्फिडेंट रखे कि यस मैं कर सकता हूं, तभी तो मैं आया हूं. नहीं कर सकता तो यहाँ क्यों आता मैं, घर पे रहता फिर. सो आप यहाँ आए हो मतलब सब क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं. बस अपने अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है. तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाएं और पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम में जाएं. 100% क्या होगा, सिलेक्शन होगा, 100% होगा. बस थोड़ा सा वहां पे फोकस कंसंट्रेट रखना और मेरी तरफ नहीं देखना. वहां पे नेक्स्ट आगे, मेरी तरफ का मतलब भरोसा अपने ऊपर रखना है, ये नहीं कि किसी और के भरोसे जाओ. मैं तो हर जगह नहीं होऊंगा, पर किसी और के भरोसे नहीं रहना है. भरोसा सिर्फ किसमें होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए. बताया था कि हम किसी के भरोसे नहीं जीते, अपने दम पे आग लगाएंगे. और सारा तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा के ले आएंगे. तो बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है. कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए कि हम नहीं झुकेंगे, मंजिल को लाएंगे, कुछ भी हो जाएगा. यस, आ जाओ नेक्स्ट, आगे पूरा करना है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. लिखने की नहीं है, लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है, इससे लिखने से कुछ समझ नहीं आएगा. मैं बोल रहा हूँ लिखना भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी 2 मिनट. ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, 2 कंडीशन यहाँ लिखी हुई है. एक के अंदर लिखा हुआ है वन म्यूटेड कॉपी ऑफ जीन इन ईच सेल इज सफिशिएंट फॉर अ पर्सन टू बी अफेक्टेड बाय एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और बोथ कॉपीज ऑफ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन. और डिजीज के एग्जांपल क्या है, इससे कुछ समझ नहीं आएगा. जब तक जेनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, बट समझ में आ जाए उतना मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक बार. सो देखिए क्या होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, वन इज एन ऑटोसोमल डिजीज, autosomal disease, and second one is an allosomal disease. Allosomal disease. Autosomal disease means when the affected gene are autosome. Affected gene कौन से होंगे, autosome affected होंगे, autosomes are affected. This is known as autosomal disease. In our genetics we have 46 number of chromosomes. कितने chromosome है, 46 है. Out of these 46 these are divided into 2 part. Okay, I will explain you in detail. ऊपर पढ़ाता हूँ. These are the 46 chromosome and these 46 are divided into 2 part. The autosome
When we are discussing about autosome, these are 22 in pairs or we can say 44 in numbers. Pairs पूछे तो 22 and number में पूछे तो pair. Our chromosomes always present in a pair form. Single नहीं होता. They always present in our body as a pair form. And allosome, these are the chromosome which is known as sex chromosome, also known as sex chromosome because they are responsible for the sex determination of the child. जो भी बच्चा होगा उसका sex क्या होगा उस पे depend करेगा allosome के ऊपर. And these are two in the number. Two in number or in pairs. One pair. Pair में कितने हैं? One और number में पूछे तो two. Now autosomes की बात करें तो these all are always XX. Autosomes क्या होंगे? XX होंगे? नहीं. So autosomes की बात करें, these all autosomes are always A. Or we can say A and A. Two copy of these gene are and one more copy that will be A and A. So ये किसके लिए है? अगर हम बात करें allosome की, so ये two in number, one is X and second one is X or X and Y. When these genes are affected, this will produce allosomal disorder, and when these genes are affected, they will produce autosomal disorder. Clear? Here, this is the XX means girl child, and XY means the boy child. There is a problem in boys when we are discussing about a sexual disorder or the sex chromosome disorder or the allosomal disorder. There is a big problem in child. If father is affected with this allosomal disease, father में कौन सा disorder है? Allosomal disease है. In that situation, the male child is only the child which get 100% that disease. Male child में क्या होगी वो disease transfer होगी. Because अगर हम बात करें sex determination की तो mother और father, mother में क्या होंगे XX और father में XY. If father is affected only मतलब कौन सा gene affected है? Y gene is affected. And अगर child जो है वो male child हुआ है तो male child का क्या बनेगा? X and Y. X किसने दिया? Mother ने. Y किसने दिया? Father ने. So this will always, so father से अगर कोई भी sex chromosomal disease transfer होती है और वो अगर male child है तो उस condition में क्या होगा? Child हमेशा affected रहेगा, male child. But if the child is female child, that always unaffected because this X is given by the mother and this X is given by the father and both genes are unaffected. So girl child is always unaffected, male child is always affected in case of sex chromosome diseases. और ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं. अभी हमारा जो डिसऑर्डर जो है हमने जो पढ़ लिखा था वो कौन सा है? कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल. तो मैं सिर्फ अभी इनकी बात करूंगा. ये जो डिजीज है वो मैं कहां पढ़ाऊंगा डिटेल में जेनेटिक्स के अंदर. तो इनको थोड़ा सा आपको डिटेल में ब्रीफ करता हूं मैं. ये क्लियर हो गया? पेयर्स. सो हम कौन से पेयर की बात करेंगे? 22 पेयर्स की बात करेंगे. उनकी बात अभी नहीं करेंगे. सो डिजीज कितनी हो सकती है? दो हो सकती है. वन इज ऑटोसोमल एंड सेकंड वन इज एलोसोमल. ऑटोसोमल मींस कौन से जीन अफेक्टेड होंगे? ऑटोसोम्स. एलोसोमल मींस एलोसोम्स और द सेक्स क्रोमोसोम. अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? ऑटोसोम्स. नाउ कम ऑन दिस ऑटोसोम. This autosomal disorder can be divided into two types. One is a dominant pattern. Second one is a recessive pattern. Dominant and recessive. I think मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था dominant and recessive का मीनिंग अगर आपको याद हो तो. In starting of the blood बताया था कुछ थोड़ा बहुत. So this is the gene. This is an A and A. Or this is a A and A. Or this is A and A. जैसे हमने ब्लड में पढ़ा था A, B और O. A, O, O. तीन पढ़ाए थे मैंने. O is always recessive and A and B is always dominant. As like in this pattern, this capital A is an indication for dominant and this small a is an indication for recessive. मैं इसका एग्जांपल लेता हूं पहले AA का. If this one A is affected and it is a dominant pattern, capital A मतलब वो कौन सा होगा? Dominant होगा and one is only affected, not both copy of the gene, only one copy of the gene is affected. In case of dominant pattern, this one copy of gene is able to cause a disease. क्योंकि यहाँ पे pattern कौन सा है? Dominant है. Dominant में एक ही कॉपी होता है. उसने बताया था मैंने one is enough to cause disease in dominant pattern. In case of second copy that is AA and if this copy is affected again, if this is the copy which is affected, that will cause again a dominant pattern and one copy is enough to cause disease. But in some cases there is a problem like this is the A and this is the A and in this condition this one is affected. कौन सा disease होगा? कौन सा disease होगा? So remember that in case of recessive pattern, both genes should be affected. One single gene is not able to cause disease. So if only a small A is affected, that will be act as a carrier. It is not a disease condition. It is a carrier. तो ये disease में नहीं आएगा. Disease अगर recessive में होता तो क्या होगा? A and both are affected. This is only a possible one जो है recessive में possible है जो disease कर सकता है. तो I think थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया लगा. अगर आप small a और capital A को देख रहे हो तो capital A को देखते ही कौन सा पैटर्न याद आना चाहिए? Dominant and small is recessive. When capital A is affected, it will cause disease. Either it's single or either it's both. Single भी affected है तो भी disease होगा, दोनों affected है तो भी disease होगा. But जब हम small a की बात करते हैं, if single small a is affected, then carrier. In same like it is ये पैटर्न भी है, A and दोनों A है और it is only affected, it is not affected. These two are always carrier. ये दोनों क्या है? Carrier. But अगर दोनों ही कॉपी क्या है affected है तब ये क्या करेगी? Disease करेगी. So most of the time in female, अगर हम female की बात करते हैं तो female are mostly carrier because they have same copy of gene XX. And in most of the time, male person always have disease because if X is affected, that is also dominant. If Y is affected, that is also dominant. And in both cases, person will have disease. So male is having more genetic problem compared to female. Female mostly having the carrier pattern, but the male is having mostly disease pattern. तो ये थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा आपके दिमाग में. ठीक है, नहीं भी रहेगा तो मैं बहुत ही जल्दी जेनेटिक्स स्टार्ट करूंगा और बाद फर्स्ट टर्म के साथ हम स्टार्ट करेंगे तब ये पूरे पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे. इसके अंदर जस्ट एग्जांपल लिखे हुए हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल क्या क्या लाइक हंटिंगटन डिजीज और मार्फन सिंड्रोम एंड ऑटोसोमल रिसेसिव के डिजीज के एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस और
सिकल सेल एनीमिया। तो हेरिडिटरी एनीमिया का एग्जांपल कौन सा है? तो सिकल सेल डिजीज और एनीमिया। क्या लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमेन में? क्या लिखा हुआ है? one mutate copy of gene in each cell is sufficient for a person to be affected by an autosomal dominant disorder. Like आप ऐसे लिख देंगे A and this is affected, it will a diseased person. And in autosomal recessive, both copy of gene is in the each cell have mutation like A and both will cause disease. Clear? ये सिंपल अभी के लिए इतना याद रखें, बाकी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कब, when we discuss about the genetics in detail. Move करें. So in our hereditary anemia, which one is an example? Sickle cell anemia. And now we will start the discussion of which disease. Sickle cell anemia is an example of hereditary anemia. So लिखें आप sickle cell anemia. It is very difficult to understand, but it is very important to understand because in exam, must ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत frequently आ रहा है, भी आएगा ऐसे. Father is affected, mother is not affected, this person is affected, second not affected, जो भी होगा ऐसे, आप क्या करोगे पता नहीं यहाँ पे. तो मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, surely I will say कि आप पिक्चर को देखते ही बोलेंगे सर दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज और दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. बिना कुछ आइडिया जस्ट 10 to 20 सेकंड में आप उसका आंसर दे देंगे. बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इंतजार करना होगा, जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा. जिन्होंने पढ़ा है पहले, किसने पढ़ा है जेनेटिक्स? है तनु ने पढ़ा है? तनु प्रिया, बातें नहीं करनी है. पढ़ा है पहले जेनेटिक्स? नहीं पढ़ा आपने भी? पढ़ा है? आता है? प्लीज सोल्व करना. भूल गए? पढ़ा नहीं वापस. रिपीटेटिवली पढ़ना भी बहुत जरूरी है. सो मैं पढ़ाऊंगा आगे और बहुत इजीली आप सोल्व कर पाएंगे. एग्जाम तक तो नहीं भूलोगे, बाकी बाद में भूल जाओ तो कोई बात नहीं. बाद में करना भी क्या है आपको, सही है क्या बात है? बाद में जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम तो याद रखो बस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू डिजीजेस, जल्दी लिखें. वन इज सिकल सेल एनीमिया एंड सेकंड वन इज थैलेसीमिया. बारिश भी आने वाली उसके बाद, उसका भी आपको एंजॉय करना है. आज आएगा, अरे आज आएगा भाई, आने दो. भाई तो बोला बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव. आए नहीं आए ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम, आएगी बस. बस मन में तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, आएगी क्या पता रात को आगे चली गई हम 100 देर तक. यस. नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया. सो द नेम ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, कंप्लीट हो गया. क्या पढ़ा है अभी? डिजीज स्टार्ट कर दिया. तो डिजीज तो लास्ट होता है, और कुछ होता है? पहले डिजीज पढ़ाना स्टार्ट किया, एपिडेमियोलॉजी से स्टार्ट नहीं किया, वो करवा दिया, फिर डिजीज पढ़ा दिया. अब आपको कमिटियां पढ़ाएंगे. अरे कमिटी तो आधे घंटे का काम होता है, और क्या पढ़. चलो ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. नेक्स्ट आगे आ जाओ. द सब्जेक्ट व्हिच आई डोंट लाइक. नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया. द नेम ऑफ दिस डिजीज, इट्स like RBC की बात करें, red blood cell. The normal shape of red blood cell is a biconcave. It is a disc and biconcave disc shape. So it will be like, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो कैसा दिखेगा? कल बताया था एल्पेनलिबे खा के मैंने, ये शेप कैसा दिखता है. So it will be look like this, a dumbbell shape. ये कब दिखेगा? जब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे कट करके lateral view देखेंगे तो ये आपको इस तरह से विजिबल होगा. So it's a biconcave, दोनों तरफ से दबा हुआ, and it's a disc shape RB. ये ऐसे पूरा राउंड ऐसे यूं हो गया, यूं पूरा. अब ऐसे 3D बनेगा नहीं. So biconcave disc shape, this is the normal shape of RBC. When this normal shape of RBC change into crescent shape, किसमें? क्रिसेंट शेप. क्रिसेंट शेप जानते हो? क्रिसेंट शेप इज सिकल शेप. सिकल शेप और क्रिसेंट शेप. क्रिसेंट, क्रिसेंट मींस और सिकल मींस होता है वो घास काटने वाला होता है. हाँ हसिया. दैट इज द शेप व्हिच इज नोन एज क्रिसेंट और द सिकल शेप. सो आरबीसी फ्रॉम द biconcave disc shape change into the sickle shape, and these sickle shape RBCs are non-functional. These are not a functional RBC. For the normal functioning of RBC, the RBC should be in biconcave disc shape. But in this disease, the RBC change into which shape? Sickle shape. And this changes from normal shape to abnormal shape is because of a genetic problem, heredity. Heredity की वजह से ये प्रॉब्लम मदर और फादर में थी, वहां से किसमें ट्रांसफर हुई? चिल्ड्रन के अंदर. So it's a genetic disorder in which the RBC change from biconcave disc shape to the sickle shape or a crescent shape, abnormal non-functional RBC. Clear है? Yes. So इसमें क्या लिखा देखें? It is an autosomal inherited blood disorder characterized by sickle shape RBC or crescent shape. I will teach you later on when I discuss about the head injury. In case of head injury, when person is having a specific type of bleeding, hematoma formation, which one? There is an epidural hematoma, EDH. There is an subdural hematoma, SDH. So in epidural hematoma, we have a lens shape bleeding, and in case of subdural hematoma, we have a crescent shape bleeding or hematoma formation. So वहां भी आएगा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे ये crescent shape hematoma cause करेगा. वो क्वेश्चन बहुत बार सीटी स्कैन में पूछते हैं, ऐसे फिल्म दे दिया और ऐसे पिक्चर बना हुआ है हेमेटोमा का, पूछ रहे इसमें कौन से टाइप का ब्लीडिंग हो रखा है. तो ऐसे सीटी देखते ही बताना इसको EDH हो गया, इसको SDH हो गया, है देगा ठीक है. बाकी तो सब बाकी लोग साहब तो बता ही देंगे आपको क्या हुआ है. तो आपको भी डायग्नोसिस थोड़ा बहुत आना चाहिए. नेक्स्ट, in this normal adult hemoglobin is partially or completely replaced by abnormal hemoglobin is called hemoglobin S. बताया था S. S is the sickle shape hemoglobin. ऐसे sickle shape में होगा, that is S hemoglobin. So S shape नहीं होगा, S is from this sickle. ये S यहाँ से लिया गया है. शेप ऐसा नहीं होगा आरबीसी का, आरबीसी तो ऐसे रहेगी, बट ये S किसको इंडिकेट कर रहा है?
सिकल को, सो इट्स ए hemoglobin HS, not HS, HbS. Alpha chain of globin, there are two chains in hemoglobin, one is alpha and one is beta. In alpha chain of globin are normal, but beta chains are abnormal. जो आपका हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन है वो क्या रहेगी? नॉर्मल. प्रॉब्लम किसमें होगी? बीटा चेन में. और इसमें कौन से नंबर पे? 6 नंबर अमीनो एसिड which is glutamic acid is replaced by the 9 valine amino acid. जो 6 नंबर पे होता है उसको कौन रिप्लेस कर देता है? 9 नंबर वाला आ जाता है वहां पे. और सीक्वेंस पूरा क्या हो गया? चेंज. It is very important to understand the sequence of genetic material. Every chromosome is responsible for some different things in your body. Like one chromosome is responsible for the color of body, one chromosome is responsible for the skin, one chromosome is responsible for the eyes, one is for the nose. And अगर उसके सीक्वेंस पे थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ, then you will have the different things. If the color chromosome is changed, then person will have the very dark color or very light color. और देखा पूरा कलर जो है पूरा white हो जाता है. क्या बोलते हैं? अभी तो स्किन पढ़ाया था, स्किन डिजीज पढ़ाया भी. When a person is having completely white skin, albinism, there are two conditions. One is vitiligo and second one is albinism. What is the difference? Both person will have white skin. White patches आता है इसलिए vitiligo है. अरे white patches के बेसिस पर इसके अलग टाइप्स हैं. एक्रोफेशियल अलग टाइप्स दिखाए होंगे, सेगमेंटल एंड पता नहीं और बहुत छोटे मोटे और टाइप्स है इसके 5-6 टाइप. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विटिलिगो एंड albinism? What is the difference between the person which is present in front of you? Both person will be completely white, no pigmentation is there. Both person are having completely white skin. One person is known as vitiligo and other person is known as albinism. How we differentiate these two person? So we differentiate these two person on the basis of cause. So one disease is due to genetic problem and one disease is due to the acquired causes problems. Like a child or a baby who is completely white by birth, जन्म से ही क्या पूरा white है, that type of child is known as albinism. That is not a vitiligo, that is known as albinism because the person is having less pigmentation from birth. That is a genetic problem. But when a child is having or a person is having white skin or less pigmentation, but it is not from the birth, it develops after birth. It's an acquired thing. Like because of burn, पूरा body burn हो गया और burn होने के बाद skin जो बनती है वो कैसी होगी? Less pigmented white skin होगी. So person will look like white person due to some other infectious condition or due to some restriction of melanocytes. Person will have less melanin production and skin color will be white. So that acquired thing is known as vitiligo. So vitiligo कब होती है? बर्थ के बाद में पर्सन एक्वायर्ड करता है. लेकिन जो आपकी एल्बिनिज्म है उसको हम बोलते हैं कंजेनिटल प्रॉब्लम. इट्स फ्रॉम बर्थ, जेनेटिक प्रॉब्लम. धर्म से ही होती है. क्लियर? चलो ये लिख लिया, हटा दें. नेक्स्ट. और ये तो आरबीसी आ गई. सो दिस इज अ वीडियो विच शोइंग यू. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड इजीली आइडेंटिफाई द विच सिकल सेल. पता लगा पा रहे हो? सो दिस इज द आरबीसी. अभी आएगी ये आरबीसी जा रही है. दिस इज आरबीसी. दिस इज आरबीसी. sickle shape RBC. So in blood, when the number of RBCs which is very high and in sickle shape RBCs, in this person there is no problem. Few RBCs are sickle shape, कोई problem नहीं है. But when these RBCs are replaced like 50% or more ज्यादा हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम किसमें आ जाएगी? सीवियर एनी प्रॉब्लम आएगी और वहां पे पेशेंट को क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा. So this is sickle cell anemia. The normal hemoglobin is hemoglobin A, and in this condition the hemoglobin will be sickle cell HB is hemoglobin S. Next, sickle cell anemia is homozygous. Patient must have two abnormal alleles present. Very good. दो टर्म यहाँ पर लिखी है वो भी हम पढ़ लेते हैं क्या होती है. देखो, what is allele? What is allele? Alleles. What is allele? हैं? नहीं बताओगे? Allele is nothing. It's just a copy of gene. उससे पहले क्या लिखना है? Two copies of gene. Like ये gene है, कोई भी gene मान लो जैसे AA. तो these are two allele. ये कौन से? Two alleles है. This is the one allele. This is the second allele. Both are the copy of one gene. These are two alleles. These are two alleles. जो gene के अंदर alleles, it is alleles, but we will use different terms. This is an allele. This is allele. This is allele. These are the copy of a gene. In alleles, the alleles are divided into two types. One is homozygous and heterozygous. When the two copies of genes are same, that is known as homozygous. Like these two copies are same, so these two chromosomes are known as homozygous chromosome. These two are also same, so these are known as homozygous. But these two are heterozygous because these are not same. These are different. So these are the two copy of the two allele of a gene, but these two are different one, not the same. So these are known as heterozygous. Homozygous में क्या होता है? Same copy of gene. Like AA or A. And heterozygous में क्या होगा? Different copy of a gene. Like A. Now, if somebody asks you, sickle cell anemia, कौन से टाइप का डिजीज था? Autosomal dominant or autosomal recessive? Autosomal recessive. And in recessive, which gene is there? Small a or capital A? And both copy are same तो होगी, but both copy are affected or one is affected, one is unaffected. Both copy are affected. So अगर मैं आपसे बोलूं कि a person which having this copy, this pattern A, and this gene is affected. Now this disease is autosomal dominant or autosomal recessive. So क्या ये sickle cell anemia में possible हो सकता है? This is possible in sickle cell anemia. This is autosomal dominant or recessive?
again dominant, so it is also not possible. In sickle cell anemia the possible thing is AA and both genes should have affected. So यही टर्म वहां आगे लिखा हुआ है, ये दोनों जीन सेम है, इनको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड बोथ शुड बी अफेक्टेड. सो यहां भी लिखा है देखो, इन सिकल सेल एनीमिया होमोजाइगस एंड पेशेंट मस्ट हैव टू abnormal मींस बोथ आर अफेक्टेड एलिमेंट्स प्रेजेंट, दैट इज HbSS. दोनों यहां पे क्या रखे हुए हैं, SS लिखे हुए, दोनों SS क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, तभी आपके पर्सन में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया. क्लियर है? सो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस और एलील अगली बार अगर वर्ड में आएगा तो आप बता पाएंगे या भूल जाओगे? Sickle cell trait is heterozygous. The patient one normal hemoglobin A and one abnormal hemoglobin S. अगर हम बात करें इस कंडीशन की, ये जो दिख रही है आपको HbAS, सॉरी HbAS. तो इसमें आपके पास दो कॉपी है, वन इज द नॉर्मल एंड वन इज abnormal. एक किसको इंडिकेट कर रहा है, हेमोग्लोबिन A जो एडल्ट टाइप में होता है, एंड S किसको इंडिकेट कर रहा है, हेमोग्लोबिन S सिकल सेल को. बट इन दिस कंडीशन वन जीन इज अफेक्टेड, वन इज नॉर्मल. इज दिस पॉसिबल इन केस ऑफ रिसेसिव पैटर्न, वन जीन इज अफेक्टेड एंड वन इज अनअफेक्टेड? क्या वो डिजीज कर सकता है? नहीं कर सकता है. सो ये ट्रेट अगर प्रेजेंट है, अगर पर्सन में ऐसा प्रेजेंट है कि एक अनअफेक्टेड और एक अफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, इन दैट सिचुएशन द पर्सन विल ऑलवेज हैव अ कैरियर पैटर्न. इसको हम कौन सा बोलेंगे? सो इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया द डिजीज पैटर्न इज ऑलवेज होमोजाइगस, बट इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस दैट विल ऑलवेज carrier pattern, and in carrier pattern few number of hemoglobin will be in sickle cell, but the rest all is normal and person will not have any disease, person will always as a carrier. Clear? कुछ आ रहा है समझ में? Very good. समझ में आना चाहिए, बाकी सब ठीक है, लिखो ना लिखो इंपॉर्टेंट नहीं है, आना क्या चाहिए? लिख चाहिए, हटा दे. So simply there are two type of traits or pattern. One is the homozygous pattern and second one is heterozygous pattern. In homozygous pattern both gene are affected. One gene is affected and one is normal. When heterozygous pattern is there, this is an carrier pattern. When homozygous pattern is there, this is an disease pattern. याद हो गया? Next. वो करें? घर जाना है और सबको क्या करना है, दूसरों को सिखाना है, रिवीजन करना है एक दूसरे को. जब आप एक दूसरे को समझाएंगे एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, और यहाँ पे होमोजाइगस अफेक्टेड है, हेटेरोजाइगस है, क्या है, कौन सा पैटर्न आ रहा है, तो आप समझ जाओगे. बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करो, दुश्मनी नहीं है कोई है, बात करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया का ईटियोलॉजी तो अभी बताया था, इनहेरिटेंस ऑफ जीन फॉर ए स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन, या जेनेटिक प्रॉब्लम सिंपल वर्ड में. सो यहाँ पे कोज क्या है, ईटियोलॉजी क्या है, जेनेटिक, ये लिख दो बस, जेनेटिक प्रॉब्लम इन हीमोग्लोबिन चेन, बड़ा बड़ा नहीं लिखना, इतना ऐसे लिख लिया. Genetic problem is only nothing else. Sickle cell crisis. What is crisis? Crisis. Crisis means we can say it's a life-threatening condition. Crisis means a life-threatening condition. Like अभी बहुत जोर से बारिश आएगा, एंड उसके बाद बाढ़ आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा लाइफ में, क्राइसिस. अरे बी पॉजिटिव आ भी सकता है, क्या फर्क, जोधपुर इट्स जोधपुर एंड ऑल द मिसहैपनिंग विल हैपन हियर, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ड्रेनेज सिस्टम हियर. और यहाँ पे जो रहता है वो सब हमने हटा दिया, घर बना दिया सब जगह, तो पानी कहीं जाता नहीं है, वो यही रहता है ऐसे. जोधपुर लाइक स्विमिंग पूल, एंड फिर उसमें सारी गाड़ियां ऐसे बहती है, लोग ऐसे बहते हैं, देखा पिछली बार ऐसा हुआ था, ऐसे ऊपर से गाड़ियां आ रही है, नीचे जो बीच में आ रहा है वो उसके साथ जा रहा है. सुबह देखा किसकी गाड़ी कहाँ मिल रही है, किसकी गाड़ी कहाँ गई है. सो कुछ भी हो सकता है. सेम लाइक इन सिकल सेल क्राइसिस, व्हेन द नंबर ऑफ आरबीसीज व्हिच इज इन एबनॉर्मल शेप, दैट नंबर इज वेरी हाई, तो बॉडी में फंक्शनल नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगी, कम, और जो एबनॉर्मल आरबीसी क्या हो जाएगी, ज्यादा. एंड उस कंडीशन में बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, लेस, और बॉडी में क्राइसिस आ जाएगा. पर्सन विल अंडरगो द क्राइसिस स्टेट, दैट इज नोन एज सिकल सेल क्राइसिस. एंड इन द फर्स्ट, इसके अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन, दैट इज veno occlusive or the vaso occlusive, sorry, vaso occlusive crisis. Vaso means vessel, blood vessels, occlusive means occlusion, blockage, crisis means crisis. So because of the abnormal shape of RBC, they will stuck inside the vein or the artery and they block the vessels in multiple part of the body and cause crisis. Like hand की vessels block हुई तो यहाँ पे पूरा sinuses हो जाएगा, necrosis हो जाएगा, पैर में हुआ तो यहाँ हो जाएगा, heart में हुई तो heart attack आएगा, brain में हुआ तो brain attack आ जाएगा. So various vein or the vessels are blocked by this crisis. Most common type of crisis caused by the stasis. Stasis means stop हो जाना एक ही जगह, clot हो जाना, of blood with clumping of cells in microcirculation, ischemia and infarction. The most common organ which having very common occlusion, सबसे अगर आपसे occlusion पूछे तो सबसे पहले किसमें होने के चांसेस, which organ, कौन से organ में occlusion सबसे पहले होने के चांसेस है, किडनी, हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, किडनी, किडनी में. So in case of vein occlusive disease, the first chances of occlusion, either it can develop in any vessels, but the most probability for developing occlusion that will be in the sinusoidal capillaries. जानते हो कहाँ होती है, कहाँ होती है, बॉडी में होती है सर, हमारी बॉडी में sinusoidal vessels और capillaries.
नहीं जानते हो? लीवर में? किसने बोला? लीवर? वाओ, दिस इज द राइट आंसर एब्सोल्युटली। किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बस लीवर बोला सर, लीवर में नहीं होती सर। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिलरीज और वेसल्स इन योर बॉडी। वन इज द कंटीन्यूअस कैपिलरीज व्हिच इज प्रेजेंट इन योर ब्लड वेसल्स, one is the fenestrated capillary which is present in your kidney, and one is the sinusoidal capillary which is present in your liver. These are the three capillaries present in our body. तीन ही होती है और आंसर इज लीवर। सो हाईएस्ट चांस फॉर दिस ब्लॉकेज इज प्रेजेंट इन द साइनोसोइडल वेसल्स, लाइक इन केस ऑफ बोन मेरो में भी हम पढ़ते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में देयर विल बी अ डिजीज व्हिच इज नोन एज वेनो ऑक्लूसिव डिजीज, VSVOD, वेनो ऑक्लूसिव डिजीज। सो वहां भी वो लीवर में ही प्रॉब्लम करती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट इज डैक्टिलाइटिस, किसके रिलेटेड है? स्टमक, पैनक्रियास। डैक्टिलाइटिस इज रिलेटेड टू, अच्छा वहां तो दिख ही रहा होगा, वहां तो दिखूंगा नहीं मैं। डैक्टिलाइटिस, डैक्टल मींस, अरे ये नहीं पता है कहां होता है, कौन से पार्ट में? फिंगर में? कहां होता है फिंगर में, कौन सा पार्ट डैक्टल होता है? हैं देखो पिक्चर दिखाता हूं मैं अभी, पिक्चर है क्या, दिख रहा है कुछ? हैं ये वाला देखो सर, ये आकर नहीं चला, स्वेलिंग हो गई है फिंगर्स की, सूज गई सारी फिंगर्स। सो hand and foot syndrome, swelling of the fingers, so says like early sign seen in the babies at 6 month. So dactyl is the word which is related to fingers, finger के लिए हम यूज करते हैं, और जो लोअर पार्ट है यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जो कॉमनली आपको देखने को मिलती है इस एनीमिया के अंदर, और मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज भी पूछा गया है। डैक्टिलाइटिस इज अ कॉमन सिम्पटम और द प्रेजेंटेशन इन व्हिच डिजीज, द आंसर शुड बी सिकल सेल एनीमिया और क्राइसिस। स्वेलिंग ऑफ दिस फिंगर्स, हैंड में भी होगा और फुट में भी होगा, दोनों में स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हाई दिस स्वेलिंग इज प्रेजेंट इन दिस हैंड और फुट इन अर्ली स्टेज, why not in other part? यहाँ पे क्यों आती है? ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पर्सन इज सफरिंग विद अ डिजीज लाइक एनी डिजीज व्हिच कॉजिंग एडिमा, वी कैन से इन केस ऑफ renal not renal failure, nephrotic syndrome, एडिमा होता है बॉडी में, सो पर्सन विल हैव अ डिजीज व्हिच इज nephrotic syndrome, एंड अगर उस पर्सन में एडिमा की बात करें तो सबसे पहले एडिमा कहाँ आएगा? फर्स्ट एडिमा विल बी प्रेजेंट एट, कहाँ होगा? पेरिओर्बिटल, फेस, लेग, हैंड। द फर्स्ट एडिमा प्रेजेंट एट व्हिच पार्ट इन बॉडी? So the first edema will be present on which part? The answer should be at the part which having higher gape or the loose skin, जहाँ पे होगी वहाँ पहले होगा, और loose skin हमारी बॉडी पे एक ही पार्ट होता है जहाँ पे होती है, that is just near the eyes। आंखों के चारों तरफ आप देखोगे तो this skin is a very loose skin। Other skin देखो यहाँ पे हाथ लगा के खींचो, and इस skin को देखो ये बहुत loose ऐसी होती है, and that's why the reason कि every time when person is having any type of disease in which edema present होगा अगर, तो वो सबसे पहले कहाँ होगा? Periorbital edema होगा। It will start from the periorbital edema, raccoon eyes, सूर्य यहाँ पे आएगी बड़ी बड़ी सी, फिर उसके बाद hand and feet, हाथ और पैर में आएगा। सो यहाँ पे इस डिजीज में पहले यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है? इन केस ऑफ वेनो ऑक्लूसिव क्राइसिस, द पर्सन विल हैव द एडिमा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द हैंड एंड फुट। व्हाई इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरिओर्बिटल? है नेरो वेसल्स है नेरो वेसल्स, तो एडिमा वाले पेशेंट में भी वही होगी वेसल्स, तो यहाँ पे पहले क्यों हो रहा है? हाँ, आई एम आस्किंग सेम कि डिस्टल एरिया में नेरो होती है, तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है उसमें भी तो नेरो ही होती है, तो उसमें पहले वहां होना चाहिए, यहाँ पहले क्यों हो रहा है? उसमें रीजन अलग है, एल्बुमिन की वजह से होता है, इसलिए पहले यहाँ एल्बुमिन पहले कम यहाँ होता है, वहां बाद में होता है। The reason is same, simple, कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या डिजीज है? Veno और वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। Remember that when a vessel is occluded, और जब भी किसी वेसल में ऑक्लूज होगा तो all the blood will be collected at the distal part of the body। जब भी वेसल ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप। और ब्लड सबसे ज्यादा कहाँ एक्यूमुलेट होता है? लाइक इन आवर बॉडी सबसे ज्यादा ब्लड वेन में होता है, आर्टरी में। टोटल ब्लड कितना होता है? अभी मेरी बॉडी में वेन में कितना ब्लड है? What amount of blood present in my vein currently? So approximately 70% of the blood present in our vein, only 30% present in our artery, and most of the blood which is present in our vein is present in which part of the body? Which part of the body? The distal part of the body. Highest amount of the blood is present in our distal part of the body, in the legs or in the distal part of the hands. And अगर occlusion होगा तो blood वापस रिटर्न नहीं होगा, और उसकी वजह से सबसे पहले एडिमा कहाँ आएगा? हैंड, जो आपका ये हैंड एंड फुट वाले पार्ट में ऑक्लूजन की वजह से यहाँ देखने को मिलेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देयर इज नो ऑक्लूजन, वहां पे ऑक्लूजन नहीं है, इसलिए वो पहले एडिमा कहाँ आएगा? जहाँ पे स्किन ज्यादा लूज मिलेगी वहां जाकर डिपॉजिट होगा। बट इन कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है? वेन में ऑक्लूजन हो गया, ब्लड रिटर्न ही नहीं हो रहा है, रिटर्न नहीं होगा तो फिर सारा एडिमा आपको हैंड एंड फुट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सेकंड वन इज द एप्लास्टिक क्राइसिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आरबीसी। एप्लास्टिकल पढ़ा था? एप्लास्टिक इज रिलेटेड टू एब्नॉर्मल बोन मेरो। बोन मेरो क्या कर रहा है? एब्नॉर्मल रेड ब्लड सेल फॉर्म कर रहा है, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। सो सेकंड क्राइसिस इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन बोन मेरो। जब एब्नॉर्मल रेड ब्लड सेल बन रही है और ये कहाँ डिपॉजिट हो जाए आपके बोन मेरो में हो जाए, तो बोन मेरो फंक्शनल नहीं रहेगा, और उस कंडीशन में जो क्राइसिस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एप्लास्टिक क्राइसिस। द थर्ड वन इज द स्प्लेनिक सीक्वेंस्ट्रेशन। व्हाट इज सीक्वेंस्ट्रेशन? सीक्वेंस्ट्रेशन, स्प्लेनिक मींस स्प्लीन, सीक्वेंस्ट्रेशन मींस, ये इसका मीनिंग नहीं आगे लिखा हुआ है। व्हाट इज सीक्वेंस्ट्रेशन? When you have a normal shape of RBC, spleen is doing normal work. But when you have a abnormal shape of RBC, spleen is working more or less. Whenever any type of sickle cell RBC reaches to the spleen, spleen immediately destroy them. उनको क्या करेगा? खत्म करेगा, immediately क्या करेगा? किल करेगा, और उसका काम क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका वर्कलोड जो है बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सेल कौन सी बन रही है बॉडी में? सिकल सेल, और उसका जो वर्क है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देयर विल बी अ डिजीज इन स्केलेटल सिस्टम, आपने वहां पे पढ़ा होगा,
सीक्वेंस्ट्रेशन एक ऐसा कुछ बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्केलेटल सिस्टम में जब मैंने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, तब मैंने पढ़ा था, भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं बहुत टाइम से, कौन सी डिजीज था मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। सो सीक्वेंस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर जो ऐसी कुछ हार्ड बन जाती है, क्या होना, हार्ड ऐसे मास बन जाना, कुछ ऐसा डिजीज कुछ याद आ रहा है स्केलेटल सिस्टम का आपको? जब स्प्लिन बहुत ज्यादा वर्क करेगा, बहुत ज्यादा आरबीसी डैमेज होगा, तो बहुत एक्सेसिव क्या बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, एंड वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्यूमुलेट होकर स्प्लिन के अंदर क्या हो जाएगा, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देगा, और उससे स्प्लिन क्या हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा, एबनॉर्मल मास की तरह वर्क करेगा, और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा अपना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिनिक सीक्वेंस्ट्रेशन, स्प्लिन के अंदर एबनॉर्मल हार्ड मास बनकर डिपॉजिट हो जाना, दैट इज नोन एज स्प्लिनिक सीक्वेंस्ट्रेशन। अभी मुझे याद आएगा तो मैं ऑर्थोपेडिक वाला डिजीज के बारे में बताऊंगा। एनीमिया तो कॉमन सिम्टम्स वही हैं, हाइपोवोलेमिया एंड शॉक। बोन ऑर्थोपेडिक में क्या क्या डिजीज पढ़ते हो, नाम बोलो मैं बताता हूँ, फ्रैक्चर को छोड़ के, आर्थराइटिस और क्या पढ़ते हैं, बस ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और बस यही होती है सर, बाकी तो क्या है, बहुत है, 4 डिजीज होती है, हमें भी याद नहीं आ रही सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, चलो नेक्स्ट लिख लिया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, सो इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम, एंड वी विल गो फॉर टू टेस्ट लाइक सिकल टर्बिडिटी टेस्ट और द सिकल टैक्स, हीमोग्लोबिन सॉल्युबिलिटी, डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल। क्या करेंगे इसमें, एक रिएजेंट होता है, सॉल्यूशन होता है, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटाबिसल्फाइड, और ये सर जो सॉल्यूशन है वो आप यूज करते हैं इस टेस्ट के लिए। क्या करना है इसमें, इफ हीमोग्लोबिन एज प्रेजेंट द टेस्ट टर्न क्लाउडी और टर्बिड अपीयरेंस, तो आपको क्या करना है, सिंपली लेना है, करेक्ट करना है हीमोग्लोबिन को, अगर ये एब्नॉर्मल टाइप का हीमोग्लोबिन है तो ये सॉल्यूशन में डालने के बाद सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, जो आपने हीमोग्लोबिन लिया उसको आपको इसमें डालना है, जो रिएजेंट सॉल्यूशन है सोडियम मेटाबिसल्फाइड जो है उसके अंदर आपने डाला, नॉर्मली कलर कैसा होना चाहिए, रेड होता है हीमोग्लोबिन का, आपने हीमोग्लोबिन इसमें पुट किया, अगर ये सिकल शेप का है तो ये सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, क्लाउडी अपीयरेंस देगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, पर्सन इज हैविंग सिकल सेल आरबीसी। लेकिन आपने अंदर डाला और वो क्लाउडी अपीयरेंस नहीं आ रहा था, क्लियर ही है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इट्स टेस्ट इज नेगेटिव, नॉट बट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड ट्रेट्स, तो ये तो हम बाद में आगे बात करेंगे। सिंपली टेस्ट में क्या करना है, रिएजेंट लेना टेस्ट के अंदर, इट इज क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह होता है रिएजेंट जो सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर आपको क्या डालना है, हीमोग्लोबिन पुट करना है, एंड उसके बाद क्या देखना है, कलर देखना है, इफ दिस कलर इज क्लाउडी अपीयरेंस, हम पढ़ते हैं यूरिन का क्लाउडी अपीयरेंस और पैटर्न फ्लूइड का क्लाउडी अपीयरेंस, धुंधला धुंधला गंदा सा, दैट इट इज एन इंडिकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन, और अगर क्लाउडी अपीयरेंस नहीं होता है, क्लियर ही रहता है, तो वो कौन सा होगा, दैट इज द नॉर्मल, इट इज नॉट अ सिकल सेल। बट इसमें नीचे एक नोट लिखा है कि ये आपकी बॉडी के अंदर सिकल सेल एनीमिया और उसका जो ट्रेट है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, कौन से टाइप का है, लाइक हमने 2 ट्रेट पढ़े थे, वन इज होमोजाइगस ट्रेट एंड वन इज हेटेरोजाइगस ट्रेट, ये नहीं बताएगा कि होमोजाइगस वाला है या हेटेरोजाइगस वाला, उसके लिए हम एक और टेस्ट करेंगे आगे। देखिए सो कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज द सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड फॉर दिस सिकल टर्बिडिटी टेस्ट, या सिकल डेक्स नाम से जानते हैं, ऐसा डेक्स का जैसा टेस्ट एक डेक्सा स्कैन भी होता है, डेक्सा ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, दैट इज डेक्सा स्कैन, किस लिए करते हैं, टू चेक द डेंसिटी ऑफ बॉन, बॉन के अंदर जो आपके ऑस्टियोसाइट्स है उनकी डेंसिटी देखने के लिए, इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस डेक्सा स्कैनिंग। देखिए नेक्स्ट, अरे लिखो जल्दी, अभी थैलेसीमिया पढ़ाना है, बहुत बाकी है, तो कल मैं कंप्लीट कर दूंगा ब्लड। आपका कोई भी डाउट है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कल क्या कर सकते हैं आप, साथ में ले आए, फिर परसों से हम किस में पहुंच जाएंगे, नर्वस सिस्टम में, और वो बिल्कुल डिफरेंट है ब्लड से, सो बाद में आपका माइंड पूरा नर्वस पे चला जाएगा और ब्लड को भूल जाओगे, तो अभी आपके पास टाइम है, पढ़ के आए, और जो भी डाउट है आप पूछ लें, और जो आपका एग्जाम है उससे पहले ब्लड कंप्लीट हो ही रहा है, सो ये अच्छा है कि आप एग्जाम में अच्छे से इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीट आप करके आएंगे। लिख लिया, मूव करें। साइकेट्रिक सब्जेक्ट जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना आपका, स्टार्ट मतलब अभी तो सिर्फ एक आधा क्लास हुआ है, या पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एंड इन डायग्नोसिस one more important test is dithionite test. This is an electrophoresis. What is electrophoresis? What is electrophoresis? Electrophoresis. Electro means electrical current. Current, and phoresis means pore formation. Electrophoresis means pore formation by using the electric current or shock. So यहाँ पे हम क्या करते हैं? We will take hemoglobin. आप हीमोग्लोबिन ले लेंगे या ब्लड का जो भी है उसमें जो भी टाइप का हीमोग्लोबिन है वो इसमें प्रेजेंट रहेगा, एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक शॉक पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक पुट करने के बाद जो हीमोग्लोबिन होगा उसके अंदर उसका जो कंपोजिशन है डीएनए और आरएनए वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दे विल सेपरेटेड,
एंड सेपरेट होने के बाद में हम उनको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे. सो इन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस वी आर जस्ट सेपरेटिंग द आरएनए और डीएनए ऑफ द हीमोग्लोबिन, और फिर उनको हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर रहे हैं. तो वहां पे आपको टाइप जो है वो पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का आपके पास सिकल सेल एनीमिया है, कौन सा ट्रेट हो रहा है, क्योंकि आपको पूरा डिटेल अंदर वाला पता चलेगा, कंपोजिशन ऑफ आरएनए डीएनए पूरा. सो डिफरेंशिएट बिटवीन द सिकल सेल एनीमिया एंड ट्रेट. इलेक्ट्रोपोरेसिस. थ्रू दिस इलेक्ट्रोपोरेसिस वी जस्ट सेपरेट द डीएनए और आरएनए ऑफ द सेल, पूरा सेपरेट कर देंगे सेल का, और फिर उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे उसके पूरे सीक्वेंस को, और उसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स इसका, किसके अंदर होमोजाइगस प्रेजेंट है या हेटेरोजाइगस प्रेजेंट है, उससे आप आइडेंटिफाई करके बताएंगे इट्स होमोजाइगस ट्रेट्स और हेटेरोजाइगस ट्रेट्स. मैनेजमेंट क्या कर सकते हो आप सिकल सेल एनीमिया का मैनेजमेंट, कुछ मैनेजमेंट पॉसिबल है इसका. सो इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, नो डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज पॉसिबल. कोई भी डेफिनेटिव मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. और जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जेनेटिक काउंसलिंग करके बच्चा ना करे उसकी एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि आगे बच्चे में ये प्रॉब्लम मस्ट होनी है, देखने को आपको मिलेगी. सो नेक्स्ट इज अदर डायग्नोस्टिक. क्या लिखा है देखो, ये डायग्नोस्टिक नहीं है, आई थिंक मैनेजमेंट है. हां मैनेजमेंट लिखना ऊपर, डायग्नोस्टिक नहीं है. मैनेजमेंट, दिस इज द मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन 4 लीटर पर मिनट पर नेजल कैनुला हाइड्रेशन थेरेपी. बीटी मींस ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट. बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, अगर आपका बीएम बोन मेरो में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रांसप्लांट करके देख सकते हैं, बट इफ इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, अगर जेनेटिक है तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, वापस प्रॉब्लम हो जाएगी. सो मोस्ट इज पर्सन विल हैव द फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन. पेशेंट को बार-बार क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. पेनिसिलिन इफ अंडर 6 ईयर इन्फेक्शियस कंडीशन पे कुछ है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स. पेनिसिलिन सुना है, कौन से ग्रुप की एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन? इज इट्स अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सो वेरी इफेक्टिव बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एग्जांपल, पेनिसिलिन एग्जांपल है, पेनिसिलिन होता है कितने टाइप का होता है पेनिसिलिन? 2 टाइप का. कौन कौन सा? जी और ई. वेरी गुड, पेनिसिलिन वी एंड पेनिसिलिन जी. और पेनिसिलिन जो होता है वो 4 टाइप का होता है. जी और वी इसके टाइप नहीं होते हैं. किसने पढ़ाया जी एंड वी? हैं, जो मैंने पढ़ाया उसका पहला वर्ड याद है, बाकी आगे वाले कहां गए? इतना बुरा तो नहीं पढ़ाया था, लिखना नहीं है कुछ भी, जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं मैं आपको. पेनिसिलिन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का. नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंड वाइड स्पेक्ट्रम. नैरो स्पेक्ट्रम फिर से 2 टाइप का, नेचुरल एंड वेरी नैरो स्पेक्ट्रम. नेचुरल के अंदर आता है आपका पेनिसिलिन जी एंड वी. ऐसे तो आप लोग हिंदी करवा दोगे मेरी. पेनिसिलिन वी, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम. बोलो अब, हैं बोलो सर, हमें तो क्या पता. मैथिलिन, याद रखने के लिए प्रेक लिखा थी कॉन्डोम. फ्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफ्लिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, मैथिलिन. These all are the example of very narrow spectrum. So मैथिलिन, नेफ्लिन, ऑक्सासिलिन, फ्लॉक्सासिलिन, और क्या बचा? डाइक्लोक्सासिलिन. उसके बाद में आती है सेकंड कैटेगरी, कौन सी? वाइड स्पेक्ट्रम. 2 इसके टाइप अगेन. एक्सटेंडेड पेनिसिलिन, वेरी एक्सटेंडेड पेनिसिलिन. एक्सटेंडेड के अंदर 2 एग्जांपल, एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन. वेरी एक्सटेंडेड. टिकासिलिन, कार्बसिलिन एंड पिप्रासिलिन. इतनी सारी पेनिसिलिन होती है, ये 2 नहीं होती है. सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन. इतना होता है पेनिसिलिन, याद हो गया? अब अगली बार कोई पूछे तो उसको ये बताना है, 2 नहीं बताना है, वी एंड जी. नेक्स्ट इज the hydroxyurea which increase the fetal hemoglobin level in patient. So we have 2 types of mainly हम बात करें तो one is the fetal hemoglobin and second one is a adult hemoglobin. In sickle cell anemia there is a problem which is present in adult hemoglobin. Adult hemoglobin का जो चेन है उस पे क्या हो रहा है, बीटा चेन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चेन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, जीन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइप ही चेंज कर देंगे. We will change the type from adult hemoglobin, we will change into the fetal hemoglobin and the body will not able to identify this fetal hemoglobin. ये सिर्फ किसको आइडेंटिफाई करेगी, adult hemoglobin को. उसी को किस पे कन्वर्ट करेगी, सिकल सेल में. सो fetal hemoglobin सिकल सेल पे चेंज नहीं होगा, पर्सन विल हैव अ फंक्शनल hemoglobin in form of fetal hemoglobin. तो हम इसके लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. उसके लिए हम क्या देंगे, हाइड्रोक्सीयूरिया. एस आ गया, इसमें क्या हो गया, एस मींस साइड इफेक्ट. इट कैन लोअर द हाइड्रोक्सीयूरिया कैन लोअर द व्हाइट ब्लड सेल काउंट, डब्ल्यूबीसी के काउंट को लो करेगा, क्योंकि ल्यूकोपोइसिस को रिड्यूस करवाता है, डिक्रीज करता है. इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ fetal hemoglobin but it reduce the white blood cell because of decrease in the leukopoiesis. Arginine, it's an anti-sickling property ड्रग जो आपकी बॉडी में आरबीसी को सिकल सेल में चेंज होने से प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंट करेगी. वो ड्रग आप दे सकते हैं पर्सन को, एंटी-सिकलिंग प्रॉपर्टी. और ये होता है एंड, ये मैनेजमेंट है, ऊपर मैनेजमेंट लिखना है, डायग्नोस्टिक नहीं है. द लास्ट पार्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट. आप लोगों का क्या काम है सिकल सेल एनीमिया में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है मल्टीपल टाइम, अ चाइल्ड इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया, आप क्या करोगे, कौन सी एक्टिविटी करवाओगे?
Which activity is very helpful for the sickle cell anemia child? कुछ नहीं कराएंगे, सुलाई रहेंगे सर, हम तो रेस्ट कर सुला देंगे. So as we know that person is already having anemia and already the oxygen level is very low. So हमें पेशेंट को जितना पॉसिबल होता है क्या करवाना है, रेस्ट कराना है. So person will have the less complications. So keep the leg elevation to promote the venous return. नहीं लिखा, लेग एलिवेट करेंगे जिससे venous return एडिक्वेट होगा और आपका जो ऑक्लूजन था वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे. हेड ऑफ द बेड no more than 30 degree to avoid putting strain on the painful joints, or high calorie high protein diet with folic acid supplement to increase the RBC formation or hemoglobin formation. Now the last disease, that is thalassemia, very important. thalassemia सुना thalassemia? क्या है thalassemia? क्या होता है thalassemia में? टी शेप की हो जाती है आरबीसी है, सिकल शेप की सिकल सेल, और thalassemia में टी शेप की हो जाएगी सर. व्हाट इज thalassemia? वो करें एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, लेकिन नहीं करते हो. सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, ऐसा कोई एमसीक्यू आया नहीं जो आपको आया नहीं अभी तक है. मतलब हाउ इट इज पॉसिबल एवरी एमसीक्यू यू आर क्लियरिंग विद दिस. अच्छा, जो नहीं आया उसको रट लो, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है. सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट प्रीवियसली आई वाज यूजिंग, जो आजकल मैं यूज नहीं करता हूं, एंड दैट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट फॉर मी. आपको कभी इंप्लीमेंट लाइफ में नहीं करना. और कॉन्सेप्ट ये था, वो मैं यूज करता था जब मैं कॉलेज में था. तब क्या कॉन्सेप्ट था माइंड में, ये था एग्जाम में क्या आएगा, जो मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता है वो एग्जाम में नहीं आएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. एंड इन 4 ईयर स्टडी, जिसको मैंने सोचा कि ये मुझे नहीं आता है वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया. अब प्रॉब्लम ये भी थी कि जो मुझे लगता था कि ये मुझे आता है वो भी एग्जाम में मुझे नहीं आया, वो भी मैं भूल गया. बट एक वो था कि ये तो मुझे नहीं आता है, तो वो एग्जाम में कभी लाइक एक मेजर इश्यू था एग्जाम में जो मुझे अभी तक याद रहता है, सबसे बड़ा इश्यू था, वो था फीटल सर्कुलेशन. ऐसा सर्कुलेशन था उस टाइम लगता था, अभी तो क्या एक सेकंड में सर्कुलेशन बने. फीटल सर्कुलेशन तो मुझे समझ नहीं आता था, पता नहीं. एक दिन मैंने एक स्टूडेंट को बोला, पहले बताया होगा आप लोग को, हमारे क्लास का एक लड़का था, टॉपर लड़का, उसको बोला मैं भाई, मैं ऐसे हिंदी में बोलता था, उस टाइम हिंदी भी नहीं आती थी इतनी ज्यादा, मारवाड़ी मेवाड़ी बोलते थे हम लोग. सो ये फीटल सर्कुलेशन कुछ होता है, ये बच्चों वाला सर्कुलेशन में क्या होता है क्या होता है, थोड़ा मुझे समझा दे यार, आ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है. उसको ये नहीं पता कि मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा है वैसे तो, और मैं थोड़ा ऐसे ही उसको जैसे बाकी सब आता है, ये नहीं आता, ये समझा रहा. तो वो था थोड़ा ओवर एटीट्यूड वाला. रीजन था कि द टॉपर वन इज ए स्टूडेंट जो बिलोंग करता था, इट्स बिलोंग फ्रॉम द नवोदय स्कूल, and he is only one student is belong to English medium school. Baki rest we are total 46 student. Out of 46, one student which is from English medium and rest 45 are from Hindi medium. So उसको क्या लगता था, I am the most intelligent, most powerful, grand city. So उसने बोला हट, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा. नहीं, ठीक है मत पढ़ा. हमारे पास क्या ऑप्शन है, जो हमें नहीं आता है वो एग्जाम में नहीं आएगा. हमने लिख दिया ये एग्जाम में नहीं आएगा, और हम एग्जाम देंगे पीडियाट्रिक का, और एग्जाम में नहीं आया और हम पास हो गए. मैंने उसको बोला देख तूने नहीं बताया तो भी हम पास हो गए. हमें ये नहीं पता था पास होने से कुछ होता नहीं है, पास होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. आफ्टर 7 ईयर, उस इंसिडेंट के 7 ईयर के बाद में द पर्सन कॉल्ड मी अगेन, उसी पर्सन ने मुझे फोन किया, एंड दिस टाइम द पर्सन हु इज बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने सिर्फ इंग्लिश बोलता था, टीचर के सामने से इंग्लिश में. सो हम उसको हम वही देखते थे, उसको इंग्लिश देखते हैं. उसने मेरे को कॉल किया एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग इन मेवाड़ी, मेरे से मेवाड़ी में बात कर रहा हूं. और भाई कोई हाल है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू. सो उसने बोला यार एक हेल्प चाहिए. मैं बोला क्या हेल्प चाहिए. बोला यार यू आर, मतलब मेरे लिए बोला तू एक फर्स्ट हमारी क्लास का स्टूडेंट है जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा. मैं ही था क्लास में जो पहला जॉब मेरा ही लगा था सबसे पहले. 46 में से सबसे पहले तू सेलेक्ट हुआ था, मैं ही हुआ था, और उन 46 में सबसे पहले फेल भी नहीं हुआ था. सो उसने कॉल किया, उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में आ गया था. तो उसको भाई टीचिंग के बाद तो सबको पता चल गया कि ये पढ़ाता है. वो उनको ये लगता था ये सेलेक्ट भी हो गया, पढ़ाता भी है, और इसको कुछ आता भी नहीं था. ये कैसे पॉसिबल हो गया. इसने कुछ ने तो बोला इसने क्या किया, बहुत सारे पैसे दिए तब हो गया, ऐसे हो गया तुक्का. और वो भी कहाँ मिला, उस टाइम जोधपुर एम्स मिलना इट इज वेरी डिफिकल्ट. उस टाइम बहुत कंपटीशन था जोधपुर एम्स के लिए, आजकल नॉट सेट से कम हो गया, बट पहले सिर्फ जोधपुर एम्स का एग्जाम था तो हर एक पर्सन को यहाँ आना था. तो वो अदर एम्स के कंपटीशन में यहाँ 200 से 300 गुना ज्यादा कंपटीशन था. इट इज हायर देन अदर एम्स, बहुत कंपटीशन था. सो वो मिला. उसने बोला यार क्या पढ़ा तूने और ऐसे कैसे तेरा सिलेक्शन हो गया, तो तू एम्स में मिल गया और पढ़ाने लग गया. नहीं क्या क्या पढ़ना चाहिए गवर्नमेंट जॉब पे, वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा था उधर 10,000 की जॉब में. सो मैंने उसको बोला भाई यार पढ़ना पड़ता है जॉब करने के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए. तो उन्होंने क्या पढ़ना है, मैंने कहा एक ही टॉपिक पढ़ना है, फीटल सर्कुलेशन है. वो तो पढ़ आराम से, तेरे को बहुत अच्छे से आता होगा, और बाकी अगर तुझे और कुछ पढ़ना है तो आजा, इधर हम पढ़ाने के लिए तैयार बेटे. सो ऐसा होता है लाइफ में, टाइम चेंज होगा, ये नहीं कि हमेशा टाइम एक ही रहता है. टाइम विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज, हर चीज चेंज होता है लाइफ में. और मतलब एक होता है बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस और बराबर है. और कॉन्फिडेंस जैसे और कॉन्फिडेंस आपको चलता है ना, तो थोड़ा चलते ऐसे होते गिर जाता है इधर. मतलब मटकी एक तो नॉर्मल जितना है उतनी भरी हुई है, एक वो आधी भरी है ज्यादा भरी है, तो फिर वो बार बार क्या करेगी, आपको आधा पानी नीचे गिराएगी. वो ऐसा आधा इधर गिर रहा है, आधा उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, सेक्शन कभी हुआ नहीं. सो लाइफ में हमेशा भाई आता है तो बता दो, नहीं आता तो नहीं आता है, बात खत्म. उसमें ओवर एक्टिंग करने से, ओवर इंटेलिजेंट बनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो आपको भी मैं यही कह रहा था कि आप लोग क्या करें, एक दूसरे से
डिस्कस करें, दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनी टॉपिक। हमेशा अच्छा लगेगा आपको, आप डिस्कस करें। लाइक हम लोग बैठ के भी डिस्कस करते हैं, सर थोड़ा ये बैठ के डिस्कस करते आओ, ताकि मुझे समझ आए, उनको आए नहीं आए कोई बात नहीं, मुझे तो आएगा। और वो कुछ है तो वो मेरे से डिस्कस करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी दोनों को। वैसे आप लोग भी एक दूसरे से क्या करें, डिस्कशन करें, बहुत मजा आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। नेक्स्ट आगे लिखो, थैलेसीमिया आल्सो नोन एज द कुलीज एनीमिया और मेडिटेरियन एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। कुलीज एनीमिया के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या होता है इसमें, अगर हम इसकी बात करें तो देयर इज अगेन प्रॉब्लम व्हिच इज कम अंडर द ऑटोसोमल इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। एंड यहां भी क्या बने, द एब्नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ hemoglobin, as like in sickle cell anemia, the RBC shape is in sickle shape. In thalassemia, again we have abnormal formation of red blood cell, and these RBCs are microcytic and hypochromic. जो इनका फॉर्मेशन होगा, जब रेड ब्लड सेल सिंथेसाइज होगी तो बन के कौन सी साइट में आएगी, इट्स अ माइक्रोसाइटिक एंड hypochromic RBC. Hypochromic means the hemoglobin content is very low and the size of RBC is also very small. So this type of RBC mainly present in your thalassemia. You will see this is the normal picture of red blood cell, and this is an abnormal picture of red blood cell. In this the red blood cell is a biconcave disc shape, but in this there is no defined shape, कोई भी फिक्स शेप नहीं है। Some like this, some different type of shape is there. So this type of condition is known as thalassemia. These RBCs are always microcytic, small in size, as well as the hypochromic RBC. Whenever a father or mother is suffering with this genetic disorders like thalassemia or the sickle cell anemia, the very important treatment is preventional treatment, which is known as genetic counseling. जब भी किसी पेरेंट्स में ये डिजीज होती है तो उनको हम क्या करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। We will go for a very safe step that is known as then adoption of child. हम उनको ये बताते हैं कि आप अपना चाइल्ड से कंपेयर करने या अपने चाइल्ड की बात करें उससे ज्यादा बेटर क्या रहेगा आपके लिए, अडॉप्ट करना। बिकॉज आप चाइल्ड जो बोर्न होगा दैट विल हैव दैट थैलेसीमिया और द सिकल सेल एनीमिया, एंड बच्चे की क्या हो जाएगी, वेरी सून दैट चाइल्ड विल डाई, इट मे बी डाई इन द 5 ईयर और 10 ईयर और 15 ईयर, पर बच्चे की 100% क्या हो जाएगी, डेथ होगी। और जब बच्चा अपना होता है बोर्न, जब मदर या फादर दोनों केयर करके उसको बड़ा करते हैं और उस टाइम जब उनके हाथों में लॉस होता है तो इट विल गिव अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंड उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन केस ऑफ अडॉप्शन, जब अडॉप्ट करते हैं तो इट वेरी पॉसिबल कुछ टाइम लगेगा अटैचमेंट में, इट विल टेक फ्यू टाइम टू गेट अटैच विद दैट चाइल्ड, बट जब एक बार अटैच हो जाएंगे तो वो उनका ही बच्चा होगा वो, और वो अपना ही करके उसको लाइफ टाइम तक जो है वो आपका साथ देगा। तो उस कंडीशन में जेनेटिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जेनेटिक काउंसलिंग करके अडॉप्शन ऑप्शन जो है बेस्ट रहता है कंपेयर टू ओवन चाइल्ड। क्लियर? नेक्स्ट नहीं लिखा, चाइल्ड अडॉप्शन सुना आप लोगों ने? लाइक कुछ दिन पहले एक बच्चा, एक स्मॉल गर्ल्स जो थी उसको कुछ छोटा मोटा इशू था, उसके लिए उसको हॉस्पिटल आए थे। सो मैं उस प्री ऑप में, लाइक इन प्री ऑप हमारा जो प्री ऑप वेयर होता है, मैं वहां फ्रीक्वेंटली मूव करता रहता हूं, और 2 बेड जो है पीडियाट्रिक ओटी के लिए होते हैं। सो जो भी बच्चे आते हैं उनको मैं कुछ ना कुछ बना के प्रोवाइड करता हूं, ग्लव्स के साथ में क्रिएटिविटी करते रहते हैं, कभी क्या बनाया, कभी पता नहीं ऐसे मिकी माउस बनाया जो बनाया। सो उस चाइल्ड के साथ मैं प्ले कर रहा था और उसको लेके मैं घूम रहा था ओटी में, एंड बाद में मुझे पता चला कि दैट गर्ल जो थी शी सो क्यूट एंड सो ब्यूटीफुल, बहुत मतलब सुंदर थी वो, 6 मंथ ओल्ड बेबी ओनली। और उसके साथ जो लेडी थी उससे मुझे बाद में पता चला कि द बेबी बिलोंग टू ऑर्फन हाउस। वो जो चाइल्ड बच्चा, छोटी सी बच्ची, वो किससे बिलोंग करती है, ऑर्फन हाउस, यानी जो ये अनाथ आश्रम होते हैं वहां पे उसका वो वहां की बेबी है। सो फिर उससे मैंने हिस्ट्री पूछा तो बोला हमारे पास तो ऐसे रोज ही आते हैं, जो भी अनवांटेड चाइल्ड या जिनको नहीं चाहिए वो हमारे पाल ना जानते हैं उसमें रख के चले जाते हैं, और फिर हम लोग केयर करते हैं और कोई आते हैं अडॉप्ट करके ले जाते हैं बाद में। सो इतना क्यूट बेबी को कैसे कोई छोड़ सकता है, वो मतलब आई डोंट नो कैसे पॉसिबल हो सकता है कोई मदर या फादर के लिए कि 9 मंथ उसको केयर करके उसके बाद इस तरह से छोड़ देना। नेक्स्ट, एंड इट इज नॉट लाइक वो बेबी को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि इट बिलोंग टू लोअर क्लास ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली से बिलोंग करता होगा, बिकॉज़ इट्स अ हेल्दी चाइल्ड, इट्स अ क्यूट बेबी, कलर हर चीज जो अच्छा गुड न्यूट्रिशन लेता है वो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें, उस फैमिली से बिलोंग करता है। बट इट मे बी सम फैमिलीज जो अभी भी ओल्ड टाइम में जी रही है, गर्ल चाइल्ड मेल चाइल्ड, ऐसा डिफरेंशिएशन अभी भी उनमें प्रेजेंट है, तो वो ऐसा केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन। लाइक हमने पहले डिजीज पढ़ी थी, वहां पे आपने देखा कौन सी चेन में प्रॉब्लम थी, अल्फा बीटा चेन जो थी, बीटा चेन के अंदर जो ग्लोबिन चेन थी उसमें 6 जो था वो किसकी जगह गया था, 9 ने रिप्लेस कर दिया था 6 को। इन दिस कंडीशन यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन हो रहा है वही क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हीमोग्लोबिन के अंदर जो अल्फा और बीटा चेन उनका प्रोडक्शन ही क्या हो गया, कम हो गया, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो शेप क्या रहेगा, स्मॉल साइज, माइक्रोसाइटिक, एंड जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर कलर कैसा रहेगा, हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट देखिए, वो करें। नेक्स्ट टाइप ऑफ थैलेसीमिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया? थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया। सुने अलग टाइप होते हैं, नहीं होते? अरे होते नहीं होते, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। थैलेसीमिया मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिया। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थैलेसीमियास एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांसेप्ट जो इनके पीछे, किसको मेजर बोलते हैं, किसको माइनर बोलते हैं, कौन इंटरमीडिया में आएगा, और उसमें क्या-क्या कंडीशंस आएगी, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू।